पंजाब कैबिनेट की आज हुई बैठक के दौरान अहम फैसले लिए गए हैं। मीटिंग की जानकारी देते हुए कैबिनेट मंत्री कुलदीप सिंह धालीवाल और अमन अरोड़ा ने बताया कि राज्य में खराब मौसम के कारण खराब हुई फसलों का मुआवजा किसानों को दिया जाएगा, जिसकी प्रवानगी आज कैबिनेट मीटिंग में मिल गई है। कुलदीप धालीवाल ने कहा कि 100% नुकसान वाली फसल का 15,000 प्रति एकड़ के हिसाब से मुआवजा दिया जाएगा। ਅੱਜ ਸਾਡੀ ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਫੈਸਲੇ ਕੀਤੇ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਅੱਜ ਵੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਭ ਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਮੌਸਮ ਅੱਜ ਵੀ ਸਾਥ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਿਹਾ। ਕੁਦਰਤ ਦੀ ਕਰੋਪੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬਰਬਾਦ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਕਿ ਥੋੜਾ ਬਹੁਤਾ ਨੁਕਸਾਨ ਘਟੂਗਾ ਜੇ 2 ਦਿਨ ਬਰਸਾਤ ਹੋਈ ਤਾਂ ਉਹ ਨੁਕਸਾਨ ਵੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਲੈਵਲ ਤੇ ਹੋਊਗਾ। ਸੋ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਵਿਸਾਖੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਵਿਸਾਖੀ ਸਭ ਲਈ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਭਰੀਆਂ ਹੋਊਗਾ, ਚਾਹੇ ਕਿਸੇ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਗਿਆ ਚਾਹੇ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਸਰਕਾਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪੂਰੀ ਮਦਦ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਵਿਸਾਖੀ ਦੇ ਸ਼ੁਭ ਦਿਹਾੜੇ ਦੇ ਵਧੀਆ ਢੰਗ ਨਾਲ ਮਨਾਉਣ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹੈਲਪ ਕਰੂਗੀ। ਸੋ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ, ਜਿਹੜਾ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਅਨਾਉਂਸ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ, ਉਹ ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ਅੱਜ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ 15,000 ਪਰ ਏਕੜ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਜਿਹੜਾ 100% ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਹੋਊਗਾ, ਔਰ ਜਿਹੜਾ 33 ਤੋਂ 75 ਤੱਕ ਹੋਇਆ ਹੋਊਗਾ ਉਹਨੂੰ 6800 ਰੁਪਈਆ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਜਿਹੜਾ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਔਰ ਗਿਰਦਾਵਰੀ ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਕਰਾ ਰਹੇ, ਪਹਿਲਾਂ ਆਲਰੇਡੀ ਸੀਐਮ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਅਨਾਉਂਸ ਕੀਤਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਗਿਰਦਾਵਰੀ ਸਾਂਝੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਪਿੰਡ ਦੇ ਕੇ ਚੌਂਕ, ਪਿੰਡ ਦੇ ਕੇ ਗੁਰੂ ਘਰ ਵਿੱਚ ਪਟਵਾਰੀ ਉੱਥੇ ਬੈਠ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਗਿਰਦਾਵਰੀ ਕਰੂਗਾ। ਔਰ ਆਹ ਜਿਹੜਾ ਨੁਕਸਾਨ ਅੱਜ ਵਾਲਾ ਜਾਂ ਕੱਲ੍ਹ ਵਾਲਾ ਹੋਊਗਾ ਇਹਨੂੰ ਵੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕੀਤਾ ਜਾਊਗਾ, ਤਾਂ ਜੋ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ੰਕੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਕਿ ਪਟਵਾਰੀ ਗਿਰਦੌਰੀ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਜਿਹੜਾ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਭ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਗਿਰਦੌਰੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਕੀਤੀ ਜਾਊਗੀ। ਜਿਸ ਘਰ ਦਾ ਥੋੜਾ ਬਹੁਤਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਉਹਨੂੰ 5200 ਰੁਪਈਆ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦੀ ਰਿਪੇਅਰ ਵਾਸਤੇ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਘਰ ਬਿਲਕੁਲ ਢੱਠ ਗਿਆ, ਗਰੀਬ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਦਾ ਕੱਚਾ ਘਰ ਬਿਲਕੁਲ ਢੱਠ ਗਿਆ, ਉਹਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਜਿਹੜੀ 1,20,000 ਰੁਪਈਆ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਦੇਊਗੀ। इसके साथ साथ कैबिनेट मंत्री कुलदीप सिंह धालीवाल ने कहा कि गेहूं की बजाय बासमती खेती को तरजीह देना जरूरी रहेगा। नरमे की फसल के रकबे को बढ़ाया जाएगा। नरमे के बीजों पर पंजाब सरकार 33% की सब्सिडी देगी। ਜਿਹੜਾ ਕਣਕ ਝੋਨੇ ਦਾ ਬਦਲ ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਤੈਅ ਕੀਤਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਐਤਕਾਂ ਬਾਸਮਤੀ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਅਸੀਂ ਥੋੜੇ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਅਫਸਰਾਂ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਕੇ ਡਿਊਟੀਆਂ ਲਾਤੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ। ਅਸੀਂ ਬਾਸਮਤੀ ਜਿਹੜੀ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਅਸੀਂ ਲਵਾਉਣ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ। ਔਰ ਨਰਮਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦਾ ਏਰੀਆ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਵਧਾਇਆ ਜਾਊਗਾ। ਔਰ ਨਰਮੇ ਦੇ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜਾ ਏਰੀਏ ਵਾਸਤੇ ਵਧਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਬੀਜਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ 33% ਜਿਹੜੀ ਸਬਸਿਡੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਊਗੀ। ਜਿਹੜੇ ਬੀਜ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਲੁਧਿਆਣਾ ਤੋਂ ਮਾਨਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਣਗੇ, ਇਹ ਮਤਲਬ ਅੱਜ ਜਿਹੜਾ फैसला किया। आपके कैबिनेट मंत्री चेतन सिंह जोड़ा माजरा ने कहा कि कुदरती बेहाली के कारण किसानों की कनक की और फसलें और सब्जियों का जो नुकसान हुआ है उसका मुआवजा पंजाब सरकार की तरफ से 15 अप्रैल को दिया जाएगा। इसके साथ साथ किसानों से अपील की कि वे अपनी फसलों की गिरदावरी खेतीबाड़ी के मामले में महकमे से मिलकर तुरंत करवा लें। सत श्री अकाल जी। जिस तरह के पता ही है कि कुदरती जी गड़ेमारी हुई है ਜਾਂ ਬੇਮੌਸਮੀ ਬਰਸਾਤ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਫਸਲਾਂ, ਕਣਕ ਜਾਂ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਜਾਂ ਮਿਰਚਾਂ, ਜੋ ਵੀ ਫਸਲ ਨੁਕਸਾਨੀ ਗਈ ਆ, ਉਹਦਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਸਾਡੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਾਨ ਜਲਦੀ ਜਿਹੜਾ 15 ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੱਕ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਦੇਣ ਦਾ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ 15 ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੱਕ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਮਿਲ ਜੂਗਾ। ਸੋ ਸਭ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਆਪੋ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜੀ ਗਿਰਦਾਵਰੀ ਆ ਉਹ ਜ਼ਰੂਰ ਸੰਬੰਧਿਤ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਫਸਰ ਨਾਲ ਰਾਬਤਾ ਕਰਕੇ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਵਾ ਲਓ। ਧੰਨਵਾਦ। आज संविधान बचाओ मार्च के दूसरे दिन कांग्रेस ने चंडीगढ़ में मीटिंग की।
पंजाब कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अमरिंदर सिंह राजा वड़िंग ने कहा कि वो खालिस्तान की मांग करने वालों का विरोध करते हैं। वो खुद खालिस्तान के खिलाफ हैं। इसके आगे उन्होंने कहा कि राहुल गांधी और कांग्रेस सच की आवाज बुलंद करते रहेंगे। दूसरी ओर सिद्धू का हम पार्टी में स्वागत करते हैं। पंजाब के स्वास्थ्य मंत्री बलबीर सिंह संधू ने राज्य में कोविड की स्थिति के बारे में कहा कि इस समय पंजाब में 279 एक्टिव केस है। इसके साथ साथ प्रदेश को ये संदेश भी दिया कि घबराने की कोई जरूरत नहीं है, सिर्फ एहतियात बरतने की जरूरत है। बलबीर सिंह ने जनता से अपील की कि अगर बाहर जा रहे हैं तो मास्क लगा के जाएं। टोटल तो 279 पेशेंट्स जो पॉजिटिव हैं पंजाब में पूरे में, और तकरीबन 59 टेस्ट जो पर मिलियन किए जा रहे हैं। और मैंने बोल दिया कि आप टेस्टिंग थोड़ी और बढ़ा दो। मतलब कोई भी पैनिक की बात नहीं है। अभी इसका जो पेंडेमिक हुआ है इसकी वैक्सीनेशन भी हो चुकी है। फ्रंट लाइन वर्कर्स में तो ऑलमोस्ट 100% है, और जो बाकी जितने भी मतलब जो लोग कराना चाहते थे सबकी वैक्सीनेशन हो चुकी है, और बहुत सारे लोगों को कोविड हो भी चुका है। तो अभी ये एंडेमिक हो गया है, चाहे ये हो H3N2 हो, मतलब जितनी भी वायरल इन्फेक्शंस हैं ये कभी ख़त्म नहीं होती हैं, ये एंडेमिक रहेगा। और कहीं कहीं कुछ एरिया में जहाँ पे पहले नहीं हुआ लोगों को, तो जहाँ पे लोगों की इम्यूनिटी अभी डेवलप नहीं हुई है पूरी तरह से, तो वहाँ पे छोटे छोटे कई बार फ्लेयर अप हो जाते हैं किसी पर्टिकुलर एरिया में। तो कोई चिंता वाली बात नहीं है। कोई भी पेशेंट ICU में नहीं है और कोई भी पेशेंट वेंटिलेटर के ऊपर नहीं है। अभी जो 1-2 डेथ हुई भी हैं वो जो इम्यून कंप्रोमाइज्ड, एक कैंसर का पेशेंट था, एक डायबिटीज़ का पेशेंट था। तो जो इम्यून कंप्रोमाइज्ड पेशेंट है उनको ज़रूर मतलब बहुत ज़्यादा प्रिकॉशन लेने की, मतलब दोनों जो भी वायरल इन्फेक्शन है या किसी भी इन्फेक्शन से, तो उनको बिल्कुल वो कहीं भी भीड़ भड़के वाले एरिया में ना जाएं जहाँ पे शोर शराबा हो, और वहाँ से बच के रहें। और मास्क पहने जब भी बाहर जाना है, और मतलब उनको स्पेशल प्रिकॉशन, और जो शुगर लेवल है उसको कंट्रोल में रखें। अपनी दवाई और जो उनकी खुराक है वो नियम से लें, वैक्सीनेशन भी करवाएं। तो उनके लिए स्पेशल एडवाइस है। बाकी जो कॉमन मैन है, अगर किसी को खांसी जुकाम है तो वो 2 तरीके से कोऑपरेट कर सकते हैं। एक तो अपना टेस्ट कराएं, और अपना वो ज़रूर फेस मास्क पहने, और फेस मास्क पहनेंगे तो उससे आगे स्प्रेड नहीं होगा, उनके नियर एंड डियर वंस को भी नहीं होगा और भी किसी को नहीं होगा। तो ये अगर छोटी छोटी बातों का हम ध्यान रखेंगे तो फिर हमें पैनिक करने की कोई ज़रूरत नहीं है, और सावधान होने की ज़रूरत है। खालिस्तान समर्थक भगोड़े अमृतपाल सिंह के मामले में बड़ी गिरफ्तारी हुई है। पुलिस उसके साथ मौके पर फरार हुए सहयोगी जोगा सिंह को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। उसे लुधियाना के पास साहनेवाल से पकड़ा गया है। अमृतपाल अपने सहयोगी पपलप्रीत और ड्राइवर जोगा के साथ होशियारपुर से फरार हुआ था। पंजाब पुलिस जोगा सिंह का मोबाइल फोन ट्रैक कर रही थी और उसी आधार पर अमृतपाल की लोकेशन भी ट्रैक कर रही थी। वहीं इसी बीच उसका एक CCTV फुटेज सामने आया है, जिसमें 28 मार्च को जोगा सिंह एक जानकार की दुकान पर मोबाइल खरीदने आया था। उसके साथ 2-3 लोग और थे। जोगा सिंह नांदेड़ साहिब की गाड़ी में सवार होकर आया था। जम्मू कश्मीर के श्रीनगर ट्यूलिप गार्डन खिल चुके हैं। पहले हफ्ते में ही 1 लाख से ज्यादा पर्यटक यहां की खूबसूरती को निहारने के लिए पहुंचे। इस बार विश्व प्रसिद्ध गार्डन में 68 किस्मों के 16 लाख से ज्यादा ट्यूलिप लगाए गए हैं। वहीं प्रशासन ने उम्मीद जताई है कि इस बार रिकॉर्ड तोड़ पर्यटक यहां पहुंचेंगे। पिछले कुछ दिनों से देश की राजधानी दिल्ली में कोरोना के मरीजों की संख्या तेजी से बढ़ रही है और शुक्रवार को CM केजरीवाल ने अधिकारियों के साथ इस मामले पर बैठक की। बैठक के बाद उन्होंने कहा कि दिल्ली में कोरोना मरीजों के मामले बढ़ रहे हैं। कोरोना की तैयारी को लेकर केजरीवाल ने क्या कहा, आपको सुनाते हैं। हमारी इसको लेके पूरी तैयारी है। वैसे तो कोई भी चिंता करने की जरूरत नहीं है, बहुत कम अभी केसेस हैं और कोई सीवियरिटी भी नहीं है, लेकिन तैयारियों को देखते हुए हमारी 7,986 बेड्स हमारे अभी तैयार हैं कोरोना के लिए। इसमें ऑक्सीजन वाले बेड्स भी हैं, इसमें वेंटिलेटर बेड्स भी हैं, इसमें ICU भी हैं। 7,986 बेड्स हैं, जिसमें से 66 बेड्स केवल ऑक्यूपाइड है। 66 RT-PCR के टेस्ट करने की हमारे पास सफिशिएंट क्षमता है। लगभग 4,000 टेस्ट हम सरकारी लैब्स में करने के लिए हमारे पास क्षमता है, और प्राइवेट लैब्स में तो 1 लाख से ज़्यादा टेस्ट पर डे करने की क्षमता है। वैक्सीन भी बहुत अच्छा परफॉर्मेंस अभी तक रहा, नेशनल एवरेज से ज़्यादा अच्छा रहा।
18 प्लस की कैटेगरी में तो लगभग सबको वैक्सीन लग चुकी है, और 18 से निचली उसमें आए तो फर्स्ट डोज सबको लग चुकी है, सेकेंड डोज भी 85% के लगभग लोगों को लग चुकी है। दिल्ली की विशेष सीबीआई अदालत ने इस केस में सिसोदिया की जमानत याचिका खारिज कर दी है। आबकारी केस में सिसोदिया को 26 फरवरी को सीबीआई ने गिरफ्तार किया था। आपको बता दें, सिसोदिया को जमानत नहीं दी गई। इस मामले में 8 लोगों को बेल मिल गई है। इस मामले पर आप के राज्यसभा सांसद संजय सिंह ने मोदी सरकार पर हमला करते हुए कहा कि 2 लोगों को बिना गिरफ्तार किए ही जमानत मिली। इस निर्णय से असहमत हैं। हम हाई कोर्ट जाएंगे। पीएम मोदी मनीष सिसोदिया और सत्येंद्र जैन को जबरन जेल में रखने की पूरी ताकत लगा रहे हैं।